یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب موبائل فون نہیں آئے تھے مگر ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ عام تھے۔ ایک روز نور چشم ہمارے گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ کہنے لگی کوثر جب سے اسکول چھوڑا ہے گھر میں بالکل دل نہیں لگتا ہے، خاص طور پر تم بہت یاد آتی تھی، تنہائی ستاتی تھی اور میں بور ہوتی تھی۔ تبھی میں نے بابا جان سے ٹیپ ریکارڈ کی فرمائش کر دی، انہوں نے مجھے یہ لا کر دے دیا۔ اب میں بہت خوش ہوں، سارا دن اپنی پسند کے گانے سنتی ہوں، یوں میرا دل بہل جاتا ہے۔ نور چشم نے تنہائی کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، وہ اب فارغ وقت میں گانے سنتی تھی، تاہم اس کی ماں بیٹی کی اس شوق سے نالاں تھی۔ وہ اس پر سخت برہم ہوتی، جب وہ گانے لگاتی تو ماں کہتی اچھی لڑکیوں کے یہ توار نہیں ہوتے۔ جب سے یہ منحوس شے گھر میں آئی ہے اس لڑکی نے گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی ہے۔ ماں تو اس پر برہم رہتی مگر باپ دل نواز خان بیٹی کو کچھ نہ کہتا، بلکہ بیوی کو سمجھاتا کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ عرصے کی مہمان ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، تم اس کو کچھ مت کہا کرو۔ نور چشم تھی، بہت خوبصورت، میری ہم جماعت تھی، 8ویں کا امتحان دیا تو اس کی ماں نے اس کو اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ ان لوگوں میں پڑھانے کا بالکل رواج نہ تھا، یہ تو شہر میں آباد ہو جانے کی وجہ سے اتنا پڑھ سکی تھی۔ جب تک وہ اسکول آتی رہی روز ہماری ملاقات ہو جاتی تھی، اس کے بعد تو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے مہینوں گزر جاتے۔ جب کبھی میں اس کے گھر جاتی یا وہ میرے گھر آ جاتی تو ہم مل لیتے، ورنہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہتی۔ ہر وقت گانے سننے کی وجہ سے اس کی ماں بیٹی سے بہت شاکی رہتی تو وہ رنجیدہ ہو جاتی، ہمہ وقت اس کی ماں کوسنے دیتی کہ اس لڑکی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ نور کو گانے کی کیسٹیں لا کر نہ دیا کرے، ورنہ یہ برباد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ماں کا کوسنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اولاد کو نہ کوسے۔ کبھی کی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور بددعا لگ جاتی ہے۔ نور چشم کی چھوٹی بہن تب 10 برس کی تھی، اس کا نام دلشاد تھا، وہ نور سے 7 برس چھوٹی تھی۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک میوزک سینٹر تھا، جہاں کیسٹوں کی چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نور اپنی بہن دلشاد کو کوئی چیز خریدنے کے بہانے بھیج دیتی اور اپنی کیسٹ میں پرانے گانوں کی جگہ نئے گانے بھی بھروا لیتی۔ وہ ایک پرچی پر گانے کے بول لکھ دیتی تھی اور ساتھ یہ بھی لکھ دیتی کہ اچھے گانے بھرنا، تو ادھر سے بھی لکھا ہوا جواب آنے لگا کہ گانے بہت اچھے بھرے ہیں۔ اس پر نور مطمئن ہو جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نور چشم کے پاس پیسے نہ تھے کہ کیسٹ میں نئے گانے بھروا لائے۔ پہلے تو وہ اپنے باپ سے پیسے لیا کرتی تھی، لیکن ان دنوں اس کا باپ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ماں سے پیسے مانگے، اس نے نہ صرف انکار کر دیا، وہ سلواتیں بھی سنائیں۔ اس پر اسے دکھ ہوا اور وہ خوب روئی۔ اس کو روتے دیکھ کر دلشاد کو دکھ ہوا، وہ بہن سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بہن بری لڑکی نہیں ہے، لیکن اسے گانے سننے کا شوق اس وجہ سے ہے کہ قدرت نے اس کو بہت اچھی آواز دی تھی۔ وہ گانا سن کر ہو بہو ویسا ہی گا دیتی تھی۔ سبھی سہیلیاں نور چشم سے منتیں کرتی کہ تم گانا سناؤ، اور وہ اتنا اچھا گاتی کہ سبھی مہو ہو جاتی۔ اللہ نے اسے رسیلی آواز دی تھی اور گانے کی صلاحیت بھی جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ سر سنگیت کا گلے میں رچا بسا ہونا بھی خدا کی دین ہے۔ بہرحال نور کا شوق اسی سبب تھا اور وہ طرح طرح کے گانے بھی اسی باعث سنتی تھی تاکہ ان کو خود سے گنگنا سکے۔ یہی اس کا مشغلہ تھا اور اس میں اس سے ایک انجانی خوشی ملتی تھی۔ اس کے والد اس کے شوق کو سمجھتے تھے مگر ماں نہیں۔ تبھی وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ دلشاد نے جب بہن کو رنجیدہ دیکھا تو وہ از خود کیسٹوں کی دکان پر چلے گئی اور میوزک سینٹر والے نوجوان سے کہا، خرم بھائی اگر آپ ادھار کیسٹ بھر دیں تو مہربانی ہوگی، بابا جان گھر پر نہیں ہے، جب آ جائیں گے تو میں ان سے رقم لے کر آپ کو دے جاؤں گی۔
खुर्रम ने केस्ट भरकर इसको दे दिया और कहा, बहना पैसों की फिक्र ना करो, पैसे आ जाएंगे, पैसे ना हो तब भी केस्ट ले आया करो, मैं गाने भर दूंगा। दिलशाद केस्ट भरवा कर ले आई तो नूर चशम ने खुर्रम को रुका लिखा, भैया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने केस्ट भर दिया, यूँ आपकी रकम अदा कर दूंगी, जो ही मेरे वालिद आ जाएंगे पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अक्सर ये होने लगा कि रुपयों का भी तबादला हो जाता और जब रकम ना होती बगैर पैसों के उधार पर केस्ट भरवा ली जाती। होते होते इस पर्ची बाजी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया और तहरीर का रंग ढंग बदलने लगा। खुर्रम अब कागज़ के पुर्जों पर यह तहरीर करने लगा कि तुम्हारी बहन ने बता दिया है कि तुम्हारा नाम नूर चशम है, मुझे तुमको एक बार देखने की आरजू है, काश मैं एक बार तुम्हारी एक झलक देख पाऊँ। जब बार बार खुर्रम यह तहरीर भेजने लगा तो नूर का भी दिल चाहा कि वो एक बार खुर्रम की दुकान पर जाकर इससे बात करे, लेकिन मजबूर थी, इसकी दुकान पर कैसे जा सकती थी, माँ की इजाज़त नहीं थी, वो अपने बड़े भाइयों से भी बहुत डरती थी। लिहाजा जब भी खुर्रम की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा लिखा हुआ मिलता वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दबा लेती। पहले ये बातें कागज़ के पुर्जों पर लिखी जाती थी, फिर एक रोज़ खुर्रम ने केस्ट में गाने भरने की बजाय अपनी बातें भर कर भिजवा दी, जिसमें इल्तिजाएं थी कि बस एक बार 1 मिनट को मेरी दुकान पर आ जाओ, फिर दोबारा कभी ये मुतालबा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ एक झलक तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसी तरह की बातें वो केस्ट में भर कर दिलशाद से कहता कि ये केस्ट सबसे छुपा कर अपनी बहन को देना, किसी और को मत दिखाना। अब नूर चशम को भी एक नया मुश्किला हाथ आ गया। वो ये केस्ट तभी सुनती जब घर वाले सो जाते। एक बार खुर्रम ने अपनी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करके इसे भेजा। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब नूर ने इसका गाया हुआ गाना सुना तो वो इसकी मदह हो गई और फरमाइश की कि फ़लाँ गाना भी अपनी आवाज़ में गा कर केस्ट में भर दे। 9 उम्र बच्ची को इस खेल में मज़ा आने लगा। इधर खुर्रम ने भी मुतालबा कर दिया कि वो भी अपनी आवाज़ में कोई गाना रिकॉर्ड करके भिजवाए। नूर चशम की तो आरज़ू थी कि कोई इसकी सुरीली आवाज़ को सुने और सताइश और फरमाइश करे कि वो कितना अच्छा गा सकती हैं। जब खुर्रम ने इसकी आवाज़ में गाना सुना तो इसका दिल झूम उठा और वो इस आवाज़ का दीवाना हो गया। अब वो हर बार अपनी फरमाइश केस्ट में हर रिकॉर्ड करके भेजता कि अब ये गाना गा कर भर दो और अब फ़लाँ वाला, क्योंकि ये गीत मुझे बहुत पसंद हैं और तुम्हारी आवाज़ तो इतनी अच्छी है कि तुम बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हो। अगर तुम 4 दीवारी में कैद ना होती और तुम्हें रेडियो या टीवी पर गाने का मौका मिल जाता तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम सारी दुनिया में धूम मचा सकती हो। ऐसी सताइश पर नूर चशम मदहोश रहने लगी। इसे लगा जैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद इसको मिल गया हो। अब केस्टों में सिर्फ गाने ही नहीं, दोनों जानिब से सताइश की साथ कुछ प्यार भरी बातें भी रिकॉर्ड होने लगी थी। नूर चशम सिर्फ 15 बरस की ही तो थी। 4 दीवारी में कैद हर वक्त माँ के कोसने सुनने को मिलते तो इसका दिल इस तल्ख माहौल से फरार चाहता। वो सोचती कि पर लग जाए तो मैं आज़ाद फ़ज़ा में पहुँच जाऊँ। ऐसे में खुर्रम की मोहब्बत भरी बातें सुनकर वो किसी और ही दुनिया में पहुँच जाती थी। वो बिन देखे महबूब की इकरार मोहब्बत से ख्वाबों की दुनिया में रहने लगी थी। इन बातों का नशा था कि तन्हाई का कोई बेहतरीन बहलावा मिल गया था। अब खुर्रम का इसरार भरने लगा कि तुम भी मुझसे बातें किया करो। अगर मैं तुमको देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ। खुर्रम ने एक रोज़ केस्ट में कहा कि अब भी तुमने मुझसे कलाम न किया तो फिर मैं भी कभी तुमसे कलाम न करूँगा। ये समझ लो कि आज आखिरी बार तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो। इस धमकी ने इसे मजबूर कर दिया। अब वो भी केस्ट के ज़रिए इससे बातें करे। अब वो इसकी बातों का जवाब मोहब्बत से देने लगी। अब तक नूर चशम ने खुर्रम को देखा था और ना खुर्रम ने इसे, मगर आवाज़ के रिश्ते से अनोखी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अगर खुर्रम कोई तोहफ़ा दिलशाद के हाथ इसे भेजता तो वो केस्ट के ज़रिए शुक्रिया अदा करती।
एक रोज़ अचानक नूर चश्म की चच्ची चच्चा गांव से आए और दिलनवाज खान से शादी की तारीख मांगी, क्योंकि नूर चश्म का रिश्ता इसके वालिद ने इसे बचपन ही अपने भाई हमजा खान के बेटे अरशाद खान से तय कर दिया था, जो फलों के बागात का मालिक था। शादी की तारीख तय हो गई। दिलनवाज खान का सारा कुंबा नूर चश्म की शादी के लिए अपने गांव रवाना होने की तैयारियों में लग गया। नूर एक बार भी खुर्रम से ना मिल सकी और ना ही वो एक दूसरे की झलक देख सके। यहाँ तक कि जुदाई की घड़ी आ गई। दोनों को ही इस बात का गम था कि वो एक बार भी एक दूसरे का दीदार नहीं कर सके थे। नूर ने रोते हुए अपनी आवाज़ में आखिरी केस्ट खुर्रम को भेजी, जिसमें इसने कहा था कि मुझे ये खबर ना थी कि यूँ अचानक तुमसे जुदा हो जाऊंगी, लेकिन ना तो तुमसे मिलना मेरे बस में है और ना मौत को गले लगाना। बेहतर होगा तुम मुझे बुलाने की कोशिश करना और कुछ ऐसी बातें जो कम सुन लड़कियां मोहब्बत भरे जज्बात के साथ महबूब से बिछड़ते वक्त सोचती हैं। इसने अपनी और खुर्रम की आवाज़ों में भरी हुई केस्टों को एक रुमाल में बांधा और अपने पलंग के नीचे छुपा दिए और मौके का इंतज़ार करने लगी कि किस तरह दिलशाद को ये केस्टें देकर खुर्रम को लौटा दे, इस आखिरी पैगाम के साथ कि इसकी शादी हो रही है और अब वो एक झलक देखना तो कुछ कभी एक दूसरे की आवाज़ भी न सुन सकेंगे। लिहाजा खुर्रम इन केस्टों को तलब कर दे, इन्हें कुछ देर में रवाना होना था। रोते रोते इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। खुर्रम की एक झलक देखे बिना इसे ये शहर छोड़ने का बहुत गम था। इसे अपने मंगेतर से कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर अलग अलग मकामात पर ही रहे थे। इसके मंगेतर अरशाद खान ने इसके भाई शहवार खान से कहा था कि क्यों ना हम शादी ब्याह के गानों की कुछ केस्टें भरवा लाएं। शहवार खान बोला, ठीक है, यहाँ हमारे घर के करीब दुकान है, नगमे भरे जाते हैं, मैं वहाँ से शादी के गाने रिकॉर्ड करवा लाता हूँ। ये कहकर वो घर में आया और माँ से कुछ केस्ट तलब किए। इत्तेफाक से इस वक्त नौकरानी नूर चश्म के चप्पल उठाने इसके कमरे में गई। इसने जो सुना कि शहवार माँ से केस्ट मांग रहा है, इसने रुमाल में बंधे वो केस्ट शहवार को दे दिए। ये रुमाल जैसे बंधा हुआ था वैसे ही शहवार ने बाहर जाकर अरशाद खान को दे दिया कि मुझे काफ़ी काम है, तुम इनमें से कोई केस्ट निकाल कर अच्छे से नगमे भरवा लाओ। शादी का दिन करीब आ गया। अरशाद खान को नगमे भरवाने का वक़्त ही ना मिला। इसने सोचा कि इन्हीं केस्टों को सुन लूँ कि इनमें से कैसे गाने भरे हुए हैं, क्या खबर अच्छे हों, इन्हीं से काम चल जाए। इसने जो ही एक केस टेप रिकॉर्ड पर लगाकर बटन ऑन किया, इसका सर घूमने लगा। इसकी होने वाली दुल्हन की प्यार भरी बातें किसी और के लिए केस्ट में भरी हुई थी, किसी और के शख्स के मिलने की खातिर बेकरारियां इसमें कैद थी। इधर नूर चश्म दुल्हन बन रही थी, इधर अरशाद खान गम और गुस्से में डूबा रकाबत के जहन्नम में दहक रहा था। शादी में चंद घंटे ही बाकी थे। तमाम बाराती दरवाजे पर जमा थे। बारात की तैयारियां हो रही थी और इसके दिल पर क़यामत गुजर रही थी। अचानक ही इसके दिल ने अजीबोगरीब फैसला कर लिया और बिन संवर कर अपनी दुल्हन ब्याह लाने को तैयार हो गया। इसने अपने चचा ज़ाद शहवार खान को कहा, मेरी ख्वाहिश है दुल्हन को रुखसत करने, इसका भाई भी हमारी गाड़ी में बैठकर साथ चले। दुरुस्त है, शहवार और दिलशाद ने जवाब दिया। गमज़दा वालिदैन रुखसती के वक़्त कभी लड़की के हमरा नहीं जाते, वो घर से ही इससे रुखसत कर देते हैं। ताहम चचा जान और चच्ची अगर दूसरी गाड़ी में हमारे आगे चलेंगे, हम आपके साथ होंगे, हम सब से पीछे चलेंगे, दूल्हा ने फरमाइश की। जैसे आपकी मर्जी, दुल्हन के भाइयों ने जवाब दिया। जब बारात गांव के करीब पहुंची, अचानक दूल्हा ने नूर चश्म के भाई से कहा कि ये केस्ट लगा दे। यूं गाड़ी में लगे हुए टेप रिकॉर्ड पर केस्ट चलने लगी। जूं जूं इसकी आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी, इसके भाई के दिलो दिमाग में धमाके होने लगे। वो बल खाते पहाड़ पर बनी हुई धागे जैसी पुतली सड़क पर सफ़र कर रहे थे और ख़तरनाक मोड़ जगह जगह इस तरह सामने आ जाते थे कि जैसे खूबसूरत नज़ारा देखने वालों के सामने
अचानक कोई भयानक मंजर सामने आ जाता है। एक तरफ जो पैकर पहाड़ था और दूसरी जानब गहरी खौफनाक खाई जिसकी गोद में मुंह जोर दरिया बह रहा था। पहाड़ों की बुलंदी से नीचे गिरता हुआ पानी हजारों असदों के शोर से भी ज्यादा खतरनाक आवाज में फुंकार रहा था। इस पर नजर डालने को जी नहीं चाहता था कि दिल इसकी हैबत से सहम जाता था। शहरयार खान ने जल्दी से टेप रिकॉर्ड बंद कर दिया कि मुझ में इसे सुनने की ताप नहीं है। गुस्से से इसका तमाम वजूद लर्ज रहा था। लगता था कि वह पहाड़ों की पताल में छुपे हुए जंजलों की गराहट सुनकर हवास बाहता हो रहा है। हालांकि जंजला कहीं पहाड़ों में नहीं, इसके अपने अंदर मौजूद था। इसको बहन और इसके चाहने वाले की आवाज़ का केस्ट सुनाकर अरशाद खान ने ना सिर्फ इसे खजलो ख्वार और शर्मसार किया था बल्कि इसकी गैरत को भी ललकारा था। दूसरे ही लम्हे इसके असाब इसकी गिरफ्त से निकल गए और कार हचकोले खाने लगी। गोया पहाड़ों से बड़े बड़े तोदे टूट टूट कर इस पर गिर रहे थे। सहमी हुई दुल्हन का सांस रुकने लगा। कार ने 2-4 बड़े झटके लिए और इसके पहियों से एहतजाजी चीखें बुलंद होने लगी। तभी नूर के छोटे भाई ने कहा, गाड़ी को रोकने की कोशिश करो शहरयार खान। फिर इसने बड़े भाई को हटाकर खुद स्टीयरिंग संभाल लिया और कार को महारत से चलाकर एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां वो लोगों की नज़रों से पोशीदा हो जाते थे। बारात आगे मोड़ से मुड़ गई। पीछे दूर तक कोई गाड़ी आती नजर नहीं आ रही थी। दुल्हन के भाई ने पहाड़ के कटाव के नीचे अंदर को गाड़ी खड़ी कर दी जो वहां से गुजरते हुए ट्रैफिक और दूर से नजर नहीं आ रही थी। सुनसान जगह और हो का आलम था। सिर्फ बुलंदियों की खामोश बीत थी या फिर गिरते हुए झरनों का शोर था। गजबनाक पानी हजारों फुट खाई में बिखरे हुए असदे की मांद फनकारता हुआ बह रहा था। अपने सामने मौत का यह भयानक रकस देखकर नूर चश्म का नरम और नाजुक जिस्म सर्द पड़ गया और वो खौफ और दहशत से कांपने लगी। लेकिन उन्होंने इस सहमी हुई लड़की पर तरस न किया। अरशाद खान कार में अपनी जगह बैठा रहा जबकि शहरयार खान और इसका छोटा भाई दोनों नीचे उतरे और उन्होंने नूर चश्म को भी चश्मे ज़दन में इस तरह गाड़ी से बाहर खींच लिया जैसे वो खुशबुओं में बसी हुई खूबसूरत दुल्हन ना हो बल्कि गलाजत से भरी हुई मुर्दा जानवर की ओजरी हो। वो इसको नकेले पत्थरों पर घसीटते हुए खाई की तरफ बढ़ने लगे जिसकी आगोश में दरिया बह रहा था। जान किसे प्यारी नहीं होती। इसने भी खुद को भाई से छुड़ाने की बार बार कोशिश की लेकिन इसका नातवा वजूद इन ताकतवर हाथों की गिरफ्त से आज़ाद ना हो सका जिन्होंने एक लिहाज की ताखीर किए बगैर गुलाब के इस महकते हुए फूल को सैकड़ों फुट बुलंदी से नीचे बहते हुए दरिया में फेंक दिया। पानी के चिंगाड़ते हुए शोर में हल्की सी एक दब की आवाज़ भी सुनाई ना दे सकी और मजलूम नूर चश्म यख बस्ता जहन्नम में ना सकी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गई।